Tonight the Lord opened this promise for me to share with you, which is found in Malachi 3 and verse 10 and 11. आज परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को आपके साथ मुझे बांटने के लिए दिया है, जो पाया जाता है मलाकी 3, 10 और 11 में। This is the promise that God wants you to have fulfilled in your life tonight. यह वह प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर चाहता है कि आज वो आपके जीवन में पूरी हो। God says, परमेश्वर कहता है, I will open the floodgates of heaven and pour down a blessing or blessings upon you. परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर आशीषों की वर्षा करूंगा। I will pour out so much of blessing that you cannot hold it or you will not be able to receive it. मैं तुम पर इतनी ज्यादा आशीषों की बारिश करूंगा कि न तो तुम उसे संभाल पाओगे न उसे रख पाओगे। Yes, this is God's plan for you. हाँ, ये ईश्वर की आपके लिए योजना है। This is God's heart for you. ये ईश्वर की इच्छा है आपके लिए। As I pronounce this word of God, the heavens are opening right now. जब मैं इस परमेश्वर के वचन को उच्चार रहा हूँ, स्वर्ग खुल रहा है। The floodgates of heaven are opening right now. स्वर्ग के आशीषों के झरोखे जो है खुल रहे हैं। And God's abundant blessings are coming upon you, being poured upon you. और परमेश्वर की महान आशीषें आपके जीवन में उंडेली जा रही हैं। God's blessings are being poured upon you. परमेश्वर की आशीषें आप पर उंडेली जा रही हैं। Why does God pour the blessing upon us? परमेश्वर हम पर क्यों आशीषें उंडेलता है? It's because the devil pours evil upon us in this world. क्योंकि संसार में जो दुष्ट है, शैतान है, हम पर बुराइयों को उंडेलता चला जाता है। 1 John 5:19 says, पहला यूहन्ना 5:19 कहता है, this whole world is lying under the sway of the wicked one. पूरा संसार जो है आज दुष्ट के प्रभाव उसके चंगुल में है। Wickedness. बुराई जो है। And in Galatians 3:13 says, और गलाती 3:13 में कहता है, this world is full of curses. यह संसार श्राप से भरा Oh, है। it's terrible, my friends. और यह तो बहुत ही भयंकर है मेरे मित्रों। And in John 16:33, और यूहन्ना 16:33 में Jesus said this world is full of tribulation. यीशु ने कहा यह संसार कष्टों से भरा है। Full of tribulations. कष्टों से भरा हुआ। And that's why और इसीलिए we are unable to survive. हम जी नहीं सकते। We struggle hard. हम बहुत संघर्ष करते हैं। We are under curses. हम श्रापों के अधीन हैं। And God says, और ईश्वर कहता the है, only thing that can destroy these curses brought by the devil in this world is my blessings. एकमात्र चीज जो कि संसार में शैतान के द्वारा लाए गए इन शापों को तोड़ सकती है, तो वो मेरी आशीषें हैं। In Deuteronomy 23 and verse 5, व्यवस्था विवरण 23 और उसके 5वें वचन में the Bible says, बाइबल कहती है, God's blessings neutralizes the curses of the world. परमेश्वर की आशीषें संसार के श्रापों को शून्य करती हैं। No more sin. अब कोई पाप न होगा वहां पर। Then he pours a blessing upon us to remove the fear of the future in this world. उसके बाद वो हम पर एक आशीष उंडेलता है ताकि उसके द्वारा इस संसार में हमारे भविष्य के भय को हमसे दूर करे। The fear of the future. भविष्य का जो भय होता है। There was a girl एक बार की बात है, एक लड़की थी who was appearing for a competitive examination for her to get admission in a postgraduate course in India. जो कि भारत में एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए उसमें प्रवेश के लिए अपनी तैयारी कर रही थी। She was a brilliant student. वो एक बहुत ही विलक्षण लड़की थी। And everybody said she will top the whole engineering entrance examination list. और सबका कहना था कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में वो सबसे ऊपर में होगी। But then when the results came, परंतु जब परिणाम आया, her friends उसकी सहेलियां had their numbers there, उनके नाम वहां थे, but she did not have her number in the selection list. परंतु उस लड़की का जो नाम था वो उस लिस्ट में नहीं थी। She went to her room, वो अपने कमरे में गई, did not say anything. किसी से उसने कुछ नहीं कहा। The parents also were crying. माता पिता जो थे वो भी रो रहे थे। They didn't know how to comfort her and console her. उन्हें नहीं पता था कि कैसे उसे सांत्वना दें। They said, we will comfort her in the morning. उन्होंने कहा हम सुबह के समय उसको सांत्वना प्रदान करेंगे। The morning came. और जब सुबह हुई, The door never opened. वो दरवाजा कभी भी नहीं खुला। They called for her. उन्होंने उसको पुकारा, She never answered. उसने उत्तर नहीं दिया। They broke open the door. उन्होंने दरवाजे को तोड़ डाला। Allah, she was hanging. ओ, वो तो फांसी पर लटकी थी। She had committed suicide. उसने आत्महत्या कर ली थी। She couldn't face the future. वो भविष्य का सामना न कर सकी। Life is terrible. जीवन तो भयंकर है।
Life जीवन जो है brings us great fear. वो हमें अनेक भय ले आती है, But then thank God, परंतु ईश्वर का धन्यवाद, the Lord says, प्रभु कहता है I will pour a blessing upon you मैं तुम पर अपनी आशीष उंडेलूंगा so that you can face life confidently. ताकि तुम जीवन का सामना विश्वास से करो। In Jeremiah 29:11, God says, यिर्मयाह 29:11 में यहोवा कहता है I have made plans for you. मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, I have made plans for मैंने you. तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। When you give your life into my hands, जब तुम अपना जीवन मेरे हाथ में दोगे, I make plans for your future. मैं हूं जो तुम्हारे भविष्य के लिए योजना बनाता हूं। Plans to give you a future and a hope. एक ऐसी योजना जो तुम्हें एक भविष्य और आशा दे। I am your heavenly Father. मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, I will take care of you. मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, So I'll pour my blessings इसलिए अपनी आशीष तुम पर उंडेलूंगा according to my plan मेरी योजना के अनुसार, and remove that fear. और उस भय को दूर करूंगा। And everything will happen according to my plan. सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होगा। Tonight you have come to receive God's plan in your life, my friends. मेरे मित्रों, आज आप ईश्वर की योजना को अपने जीवन के लिए प्राप्त करने आए हैं। In the past years, विगत वर्षों have में you worked आपने hard? कड़ी मेहनत की है, Have you looked for success क्या yourself? आपने अपने लिए सफलता ढूंढी? Tonight, आज रात the Lord is going to fill you. प्रभु आपको भरने वाला है, The Lord is going to take over your life. प्रभु आपके जीवन पर अधिकार लेगा, And He is going to pour His blessings upon अपनी you, आशीष आप पर उंडेलेगा, which is His plan for your जो future. आपके लिए आपके भविष्य के लिए उसकी योजना है। You will know the plan that God has for you for your future. आपके भविष्य के लिए ईश्वर की योजनाओं को आप जानेंगे, You will walk in it आप उसमें चलेंगे and you will receive the blessing. और आशीषों को पाएंगे। You're not an orphan in this इस world. संसार में आप अनाथ नहीं हैं, You're not fighting alone. आप अकेले लड़ नहीं रहे। There's someone who loves you. कोई है जो आपसे प्रेम करता है, There's someone who loves you. कोई जो आपसे प्रेम करता है, There's someone who has a plan for you. कोई जिसके पास आपके लिए He योजना will है, surely take you वो through. आपको उसमें ले जाएगा। This is a world of competition. यह तो एक प्रतियोगी संसार है, This is a world of rat यह तो race. चूहे की दौड़ का संसार है, This is a world of backbiting. यह तो निंदा का संसार है, This is a world where you cannot trust the other man. संसार जिसमें आप दूसरे पर भरोसा नहीं कर But सकते। thank God there is someone whom you can trust. धन्यवाद, कोई है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, Who has also cried जो स्वयं भी रोया है, because he was betrayed by his own disciples. क्योंकि अपने ही चेले के द्वारा उसके विश्वासघात हुआ, Because all his disciples ran away and left him alone to face the क्योंकि judgment. उसके सारे चेले उसे छोड़कर चले गए ताकि वो न्याय का सामना कर सके। Because he cried on the cross saying, my God, why have you forsaken me? क्योंकि उसने क्रूस पर इस तरह से पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Death is staring at my face. मृत्यु मुझे निहार रहा है, I have no hope about the future. मुझ में भविष्य की कोई आशा नहीं है। That person वो says, व्यक्ति कहता है, I will help you. मैं सहायता करूंगा। I know what it is to be afraid of your future. मैं जानता हूँ भविष्य का डरना क्या होता है, That person is और वो व्यक्ति Jesus. है यीशु। That person is वो व्यक्ति Jesus. है यीशु। He has gone through the fear of the वो future भविष्य के भय से गुजर चुका है, all by himself. स्वयं ही All by himself. अकेले वही खुद गया है And he overcame और death. उसने मौत पर जय पाई है, He overcame death. उसने मृत्यु पर जय पाई है। He said, I was dead, वो कहता है मैं मर गया था but I am alive और मैं evermore. सदा काल जीवित हूँ। Revelation 1:18. प्रकाशित वाक्य 1:18 में, And in John 14:19 he says, और यूहन्ना 14:19 में वो कहता है, because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ, because I, Jesus, मैं live, यीशु जीवित हूँ, you will live also. तुम भी जीवित रहोगे, You will live तुम also. भी जियोगे। He'll make you live, giving you a wonderful future. आपको उज्जवल भविष्य देते हुए आपको जीवित रखेगा। In Genesis 32 and verse 7, उत्पत्ति 32:7 में you read about a young man who was full of fear. यह एक जवान के बारे में हम पढ़ते हैं जो भय से आक्रांत था। The Bible says he had great fear and he was in distress. बाइबल कहती है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और परेशानी में था। His name is Jacob. उसका नाम है याकूब। He was afraid of his brother who was coming to kill him. वो अपने भाई से डर रहा था जो कि उसको मारने के लिए वो सोचता था कि आ रहा है। Of course, his brother wanted to get reconciled with him, but this Jacob was in fear that his brother would kill him because he had promised to kill him before. वास्तव में याकूब का जो भाई था वो तो उससे मेल मिलाप करने के लिए आ रहा था, लेकिन याकूब को ये भय था कि वो जो है उसको मार डालेगा, क्योंकि उसने ऐसा करने की पहले सोची थी। Full of the fear of death. वो मृत्यु के भय से आक्रांत, And he was afraid of losing his possessions. वो अपनी संपत्ति खोने का भय था उसे। He was afraid of losing his family. उसे भय था वो अपना परिवार खो देगा, And in that fear, और उस भय में as he was crying जब वो रो रहा था, in Hosea 12 and verse 4, होशे 12:4 में the Bible says Jacob was crying the whole night, बाइबल कहती है पूरी रात याकूब रोया, crying for a hope.
crying for his future. रोता रहा कि उसके लिए एक आशा और एक भविष्य मिले। He struggled in tears वो आंसुओं के साथ संघर्ष में रहा and begged the angel of God to help him. और परमेश्वर के दूत से याचना की उसकी When सहायता। he cried, और जब वो रोया, God could not leave him. परमेश्वर से छोड़ न सका, God could not leave him. परमेश्वर से छोड़ न सका। And Jacob clung on to God through his tears. और अपने आंसुओं के साथ याकूब परमेश्वर से लिपटा रहा। My friend, मेरे मित्रों, you can bind God through your tears. आप अपने आंसुओं से परमेश्वर को बांध सकते हैं। It is not that Jacob went and held God tightly. ऐसा नहीं है कि याकूब ने जाकर के परमेश्वर को जकड़ कर पकड़ लिया। He did not do it physically. उसने शारीरिक रूप से ऐसा नहीं किया। Hosea 12:4 says he held God through his tears. लेकिन होशे 12:4 बताता है कि अपने आंसुओं से उसने ईश्वर को When जकड़ you लिया। cry, जब आप रोते हैं, God cannot leave you. परमेश्वर आपको छोड़ नहीं सकता। When you cry, God cannot leave you. जब आप रोते हैं, ईश्वर आपको छोड़ नहीं सकता। Today cry out to him आज आप उससे पुकारिए, उसके लिए रोइए। and tell him, Lord, I am afraid of my future. ओ प्रभु जी, मुझे भय है अपने भविष्य के बारे में। And say what Jacob said. और जो याकूब ने कहा वही कहे, Unless you bless me, Lord, जब तक तू प्रभु मुझे आशीष न दे, I will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Unless you bless me, I will not leave you. जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And God said, और परमेश्वर ने कहा, I will surely bless you. मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। Until now you are called Jacob. अब तक तू तो याकूब कहलाता था, Jacob means deceiver. जिसका अर्थ है धोखेबाज। You were deceiving people. तो बस लोगों को धोखा देता आया था And you were in trouble. और तू परेशानी में पड़ा था। But now I am making you prince with God. लेकिन अब मैं तुझे परमेश्वर के साथ एक राजकुमार बना रहा हूँ। In verse 26 he says, I will make you prince with God. वचन 26 में वो कहता, मैं तुझे ईश्वर के साथ राजकुमार बनाऊंगा। And from today God's plans will be fulfilled in your life. और अब से तेरे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होंगी। And it happened to Jacob. और याकूब के साथ यही हुआ। God raised him प्रभु up. ने उसे ऊंचा उठाया। God raised up his children. परमेश्वर ने उसके बच्चों को ऊंचा उठाया। He went and blessed the king of Egypt. उसने जाकर मिस्र के राजा को आशीष दी। God will raise you up. प्रभु आपको भी उठाएगा। God will make you stand before kings. वो राजाओं के सामने आपको खड़ा करेगा। God will make you stand before the highest in the land. देश के सर्वोच्च के सामने वो आपको खड़ा करेगा। As God's plan comes. जब ईश्वर की योजना From आती है, today you'll be made a prince with God. आज से आप परमेश्वर के साथ एक राजकुमार ठहराए जाएंगे। God's plan shall be fulfilled. और परमेश्वर की योजना जो है पूरी होगी। Just give your life into the hands of Jesus who has planned your future. यीशु के हाथ में अपना जीवन दे, जिसने आपकी योजना He will बनाई है। pour his blessings और वो आप पर आशीषें डालेगा for your future. आपके भविष्य के लिए। Make you a prince with God. ईश्वर के साथ राजकुमार बनाएगा। Princess with God. ईश्वर के साथ राजकुमारियां बनाएगा। In this world he'll make you shine. और संसार में वो आपको रोशन करेगा। Don't be afraid. इसलिए न डरें, Don't be afraid. न डरें।